السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. السلام. کون صاحب؟ میں عارف بول رہا ہوں مراد آباد سے. ارے واہ، کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب. فرماؤ، کیا حکم ہے؟ ہلو ہاں فرماؤ. میں یہ بول رہا ہوں شیخ صاحب آپ ناراض مت ہونا. ناراض ہو جاؤں گا، گڑبڑ کی ہے تو. نہیں 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 نہیں، ویسی بات ہے، تھوڑی تحقیق کرنے کا ہے. میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں. کل ہماری بات چل رہی تھی. ہلو. ہاں ہاں. جیسے اللہ کے رسول نے پکی قبروں کو بنانا منع کیا ہے، تو یہ مراد آباد میں پکی قبریں کیوں بنا کے رکھی ہیں؟ اور بھی جگہ ہیں بہت سی جگہ پہ. کون بنا رہا ہے؟ ابھی جیسے اعلیٰ حضرت صاحب نے منع فرمایا پکی قبر بنانا، اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا، اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے گمبد بنانا. تو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ تو خود گمبد بنا ہوا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا ہے. سیدھے کہوں، جی جی جی. اللہ کے رسول نے جس چیز کو منع فرما دیا بس کافی. تو پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر کیوں بنا کے رکھا قبر؟ تو گمبد بھی بنا رکھا باقاعدہ. وہ تو ان کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں ان کے ماننے والے، اور صلاۃ و سلام بھی بھیجتے ہیں ان پر، درود السلام بھی بھیجتے ہیں ان پر. کیا کریں ان کا؟ چلو میں مانتا ہوں. ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کی تو کھوپڑیاں خراب ہو چکی ہیں. ان کے ماننے والوں کی کھوپڑیاں خراب ہو چکی ہیں. میری بات سنیے شیخ صاحب. چلو اعلیٰ حضرت صاحب کی بھی نہیں بات مانتے، اللہ کے رسول کی تو بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ تو مان لیجیے ہر مسلمان کو. تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے پکی قبر بنانا اور مزاروں کے اوپر تعمیر کرنا. اور عورتوں کو پردے میں رہنے کا بھی تو حکم فرمایا ہے. جیسے آج کل کی لڑکیاں جوان کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں، اس پر کنٹرول کیوں نہیں کرتے لوگ باغ؟ وہ بات تو الگ ہے، وہ تو دکھ ہی رہا ہے زمانہ. کالجوں میں جا رہی ہے پردگی، شادیوں میں کیوں جا رہی ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں؟ جی جی جا رہی. شادی بیاہ شادی میں بھی جا رہی ہے بے پردہ عورتیں. وہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. تو جو سب تھوڑی کر رہی ہیں وہ عورتیں جنہیں اللہ کے ساتھ زمانے کے حساب سے جائز ہو جائے گا کالجوں میں بھیجنا، یونیورسٹی بھیجنا. اور کفار مشرکین پڑھا رہے ہیں اور بے حجاب لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، مستا بھی رہی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے. وہاں پر لڑکے بھی مل رہے ہیں ان کو. اور ان کے عالموں کی، مفتیوں کی عالم کی بیٹیاں پڑھیں. حدیث کی بھی لڑکیاں وہاں پڑھتی ہیں کالجوں میں. جی جی جی. تو یہ شیخ صاحب پکی قبر بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے تو اپنی تحقیق کیا ہوں. جائز نہیں ہے بنانا، منع کیا گیا ہے. تو یہ اجمیر شریف میں جو بنی ہوئی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چاہنے والوں نے بنا دی بعد میں. انہیں رد کیوں نہیں کرا جاتا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر نہیں بناتے تو اتنے چاہنے والے تھے کہ ان کی قبر کے اندر میں جو ہے کہ لوگ مٹی لے جا کے گڈھے کر دیتے، کنواں بنا دیتے. اس لیے اللہ کی طرف سے ہی بات چیتیں ایسی ہوتی ہیں حکمتن، جیسے گنبد خضرا بنا ہے. وہ بات ٹھیک ہے، مگر یہ تو اللہ کے رسول کی توہین ہو رہی ہے اور اس کے خلاف جا رہی نا یہ بات ہے. تو توہین کہاں ہو رہی؟ توہین تو یہ ہے کہ الگ چیز ہوتی. توہین یہ کہ حکم پر عمل نہیں ہو رہا. یہ بچی چلی جائے گی، وہ چلی جائے گی، اس سے کوئی حل تھوڑی ہو رہا ہے. دلی میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے بڑے مزار ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی جتنی پکی بزرگوں کی قبریں سب پکی بنا کے رکھے ہیں. تو یہ نبی سے نعوذ باللہ نبی کی باتوں کو بھی یہ لوگ رد کر رہے ہیں. مطلب دیوبندی بریلویوں نے تھوڑی بنائی ہیں، یہ تو پرانے مسلمانوں نے بنائی ہیں. ان سے پوچھا جائے، دیوبندیوں نے تھوڑی بنائی، نہ بریلویوں نے بنائی. کنہوں نے بنائی؟ شیخ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ مزار تو بہت پرانا بنا ہوا ہے. نواب رامپور نے تو اس کو وہ دیا تھا سونے کا کلف. اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے وعدہ یہود والنصارى اتخذوا الانبیاء مساجدا. سب سے بڑی جو امت میں جو فرقہ ہے وہ قبر سے شروعات ہوئی ہے بت پرستی، اور آج کا مسلمان بھی اسی پہ دھیرے دھیرے چلتا جا رہا ہے. ہاں یہ بات تو ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہیں جا رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں. مسجد میں نہیں جائیں گے نماز پڑھنے، مزار پہ چلے جائیں گے. 1000 کلومیٹر دور، 500 کلومیٹر دور چلے جائیں گے مزار پہ، لیکن مسجد میں نہیں جائیں گے 5 ٹائم نماز پڑھنے. صاحب مزار پہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، جا سکتے ہیں. وتذکر الآخرہ وتذکر الموت. وہاں جاؤ تو اپنی آخرت اور اپنی موت یاد کرنے کے لیے جاؤ. وہ اللہ کے ولی اولیاء وہاں جا سکتے ہیں. مگر پکی قبریں، ان سے بڑی بڑی قبریں تو جنت البقیع میں صحابہ ہوگی. ایک ساتھ 10,000 صحابہ کرام دفن ہے، کوئی مزار نہیں ہے. تو پھر وہ چاہے تو ان کی مٹی غائب کرنی چاہیے نا پبلک جنت البقیع سے اٹھا کے لائے جن میں حاجی لوگ جاتے ہیں. بریلوی تو
बरेलवी भी जाते हैं, तो इन्हें वहां से मिट्टी उठा के ला के घर में रखनी चाहिए। वहाँ जैसी सख्ती नहीं है ना इंडिया में, वहाँ जैसी सख्ती हो जाए तो यहाँ भी निजाम चल जाए, वहाँ जैसा सख्ती का माहौल है। कि मैंने आपकी यूट्यूब पे बहुत क्लिप सुना हूँ, मगर माशाल्लाह आप बात बहुत अच्छी करते हो, इस्लाह वाली करते हो। थोड़ा जरा इस मौजूद पे भी जरा अच्छा आलिम, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं मैं बात करता, क्योंकि आप सुलझे हुए इंसान हो, इसके लिए आपसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मुजद्दिद हूँ कि नहीं? जी, मैं मुजद्दिद हूँ कि नहीं? माशाल्लाह तुम बहुत बेहतर हो मुजद्दिद, छोड़ो, आप बहुत बेहतरीन बात करते हो सामने वाले से। और यही है कि सीधी रास्ता बताओ, ना देवबंद, ना बरेली, ना अहले हदीस, ना मौदूदी। आप फिरका वारियत नहीं रखते हो, सबसे बेहतर बात ये है। आप कोई किसी का नहीं खिलाते हो, और आप अल्लाह की एक मजबूत रस्सी की दावत देते हो। कुरान में ना वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, हाँ बेशक। और ये 50,000 का मुकर्रर आपका मुरादाबाद का जो हम्माद रजा है, ये तो चोर है, इसने तो फरिश्ते को लंगड़ा बता दिया। ये बहुत बड़ा खबीज है। ये क्या करता है इसका, वहाँ पर इसके कंडीशन सुनिए, सही नहीं है। मैंने इसके घर की जो मामला है ना इसका, जी जी जी, एक कोई मामला भी ऐसा हो गया था, कोई यानी बहुत खतरनाक मामला हुआ है साहब वहाँ पर। अरे ये बहुत बड़ा फितना है उम्मत मुस्लिमा का, इन लोगों ने ना फितना फैला के रखा है, और ये इस वजह से ना थोड़ा जरा फिरका वारियत हो रही है। अल्लाह ने हिदायत दे, मुफ्ती नहीं है। हम फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, उसका बाप है कि तमाम सैयद कह रहा, तमाम सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन सलाम, सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सब कयामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। इसने कहाँ पढ़ा है, किस रिवायत में पढ़ा, खुद नहीं पता रहेगा कहाँ गए। और कहता है कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले उसको फेंक दो। अरे तो फिर हजर असवद को क्या करो, इससे ही पूछा जाए साहब, हजर असवद को क्या करें? सब देवबंद वालों ने मुंह लगाया वहाँ। तो सऊदी अरब में तो सब पहले हदीस और देवबंदी रहते हैं, वहाँ पे तो हज असवद चूमते हो जाते हैं वहाँ। ये बताओ वहाँ की जानमाजों पे नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं करेगा, वहाँ पे खाली खड़े होकर दूर से देख के भाग जाएगा उल्टे तरफ वापस। अब ये क्या मालूम तवाब भी करेगा कि नहीं करेगा। ये तो कह रहा है कि जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले उसे फेंक दो। जो वहाँ पे होटलों में खाना मिलता है, रहन सहन मिलता है, वो भी तो देवबंदी पर हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब हैं बलरामपुर के, उन्होंने साफ कुफ्र का फतवा लगाया कि काफिर होगी, अब कोई ताबील नहीं होगी, इसे निकाह करना पड़ेगा एलानिया। लेकिन न इसने एलानिया निकाह किया, न कलमा पड़ा, और जरा सा तोबा रुजू कर लिया, फिर दोबारा से चलने लगा। अब बरेलवियों में होने लगा है कि तोबा करवा दो, थोड़ी बहुत तोबा करवा दो, रुजू करवा दो, फिर कह देते हैं कि तोबा कर लिया, रुजू कर लिया। फिर कहे तोबा रुजू हो चुका है वाला फिर। ये लोग जो हैं मीठा मीठा जब करवा तू हद बात आती है उसमें मौका है नहीं। कह रहा हूँ कि मुरादाबाद बहुत अच्छा शहर है, मैं आया हूँ मुरादाबाद में, मेरी तकरीर हुई है वहाँ पर। आइए ना। ये कोहे नूर के पास है, कोहे नूर के पास क्या जगह है वो महल्ला, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। करेली के पास में कौन सा महल्ला है, और अंदर जाते हैं। अच्छा, हम तो इधर रहते हैं मुरादाबाद में, गोल चक्कर पे ताबला शाह का मजार है ना, उसके पीछे वाले रोड पे हमारा ही घर है। मेरी बहुत तकरीर हुई है मुरादाबाद में। अच्छा, आसपास मेरी बहुत तकरीर हुई है मुरादाबाद में, लालपुर है और जो है कि आसपास काफी हुई है मेरी। और रामपुर में मुरादाबाद का भी एक हमारा मुरीद थोड़ा बहुत बहक गया। वो बहक क्यों गया कि वो मानने लगा कि बरेली वाले ही सबसे बड़े आलिम हैं, जबकि वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी गुण नहीं गाता। दादा, मैंने दादा का कम सुना ही नहीं इसके मुंह से, और कभी उसने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहा मेरे सामने। मुरीद ने, जो हमारा मुरीद था ना मुरादाबाद में, तो हमने भी उसको छोड़ दिया, हम भी उसकी परवाह नहीं करते। तो अल्लाह उसको हिदायत दे। आपने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहता तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपका काम है लोगों को सीधा रास्ता बताना। एक बार कहो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलो। बस। अच्छा शेख साहब, ये लोग एक बार बोलो तो सही, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हाँ, बात आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे हमारा तकबीर, अल्लाह अकबर। ये बरेली वाले क्यों नहीं बोलते, ये समझ में नहीं आ रही। ये बहुत बड़े सुअर हैं ये लोग। अब तुम बोलोगे तुम बदतमीजी उतर रहे हो। मैं और कुछ कह दो, कम बेश इसकी जगह कुछ और लफ्ज़ बोल देना चाहिए। लेकिन लोग इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं बोलते, ये मुझे बहुत गुस्सा आता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा उनका आली मकाम है, जन्नत के सरदार है वो लोग। ये कौन खबीज नहीं सकता है, ये लोग हैं ये लोग। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह।
हाँ बेशक खुतबे में आता है ना। जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और ये हम्माज़ा मुरादाबादी कहता है कि कयामत में तमाम सैयद हाल हजरत को ढूंढेंगे। कितना गुमराह कर रहा है मुसलमानों को। मैं भी मुरादाबाद में रहता हूँ, ये खबीस मुझसे टकरा नहीं रहा है ना। दो एक बार मैं इसकी घर भी गया हूँ मगर ये मिला नहीं है, मिलता नहीं है। अक्का में मैं इसके गाँव में तकरीर कराया, वहीं अक्का शाहपुर में। जी जी जी, जो अक्का शाहपुर में है ना, शाहपुर में मैंने अक्का शाह में मेरी तकरीर हुई है मेरी, यहाँ मुफ्ती आलम हिंद के उस्ताद का मजार बना हुआ है अंदर मस्जिद में। अच्छा अच्छा, वहाँ भी मेरी तकरीर हुई है, ये आए नहीं मेरे सामने। और मुफ्ती इमरान हनफी साहब थे वहाँ पर, मौलाना इमरान हनफी। एक तो इमरान हनफी हैं, मुरादाबाद फतेहपुर के पास के हैं, वो तो बहुत काबिल आलिम है, इनकलाबी शख्स। वो भी शायद कुछ हमसे बदल ही होगा कि अल्लाह हज़रत को क्यों नहीं मान रहे। मतलब अरे हमने के मानते तो है। अब ये उनका मतलब है कि जितना इल्म अल्लाह को था इतना इल्म तमाम वलियों के पास या इमामों के पास नहीं था, ये मानो। इस तरह का इनका अकीदा हो चुका है कुछ। अब मैं इमाम आजम से बड़ा कैसे मानूं अल्लाह को, इमाम शाफी से बड़ा कैसे मानूं, इमाम मालिक से बड़ा कैसे मानूं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बड़ा आलिम कैसे मानूं, इमाम बाकर से बड़ा कैसे आलिम मानूं। हजरत अली के बारे में तो हुजूर का फरमान है, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबू, हाँ मैं इल्म का शहर हूँ। हजरत अली उस दरवाजा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये इनका तो बहुत बड़ा आलिम मकाम है। असली में ये कुछ जो मदरसे है ना, जैसे जामे इस्लामिया रामपुर में है और ये मंजर इस्लाम, मदर इस्लाम, मुबारकपुर अशरफिया, इन सब का अकीदा हो चुका है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुण नहीं गाएंगे कभी, न इमाम बाकर के, न कभी जलसे करेंगे। आज भी मेरा चैलेंज है कि ये कभी भी, मैं अभी यूट्यूब में डालूंगा और देख लेना, नहीं करेंगे, सुनेंगे। 88 152 53 598 कभी भी हर साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर के नाम का जलसा नहीं करेंगे। जितने भी इमाम हुए ना, इमाम हसन अस्करी तक, एक का भी जलसा नहीं करेंगे लोग। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो इसलिए करते हैं कि वो तो दुनिया में माहौल है, मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का जिक्र होता है, वो तो उनकी एक मजबूरी है। लेकिन उनके बेटों का नहीं करेंगे, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, न इमाम बाकर का, न इमाम जाफर का। अगर कभी कर भी लेंगे तो 100-200 आदमी बिठा देंगे। सोचते हैं अतहर हुसैन काजी की वो आई है, ऑडियो आई है कि उसने कहा कि कभी जलसा नहीं करेंगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तो एक आध बार कर लो। और फाजिल बरेली के नाम के लाखों जलसे हो गए, पूरी दुनिया में करते हैं। क्या चक्कर है साहब, कौन कहता है कि उन्हें मत मानो? लेकिन ये किस तरह से तुम मान रहे हो कि सिद्दीक अकबर के नाम के तुम जलसे नहीं कर रहे, फारूक आजम के नाम के नहीं कर रहे, उस्मान गनी के नहीं कर रहे, हजरत अली के नहीं कर रहे, इनके नाम के जलसे तुम अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड में हर जगह उर्स कर रहे हो। भाई उर्स तो वहां होता है जहाँ आदमी कोई दफन हो, तुम तो जगह जगह उर्स कर रहे हो पूरी दुनिया में। और कभी सिद्दीक अकबर के नाम का उर्स हुआ नहीं, फारूक आजम का नाम का हुआ नहीं, उस्मान गनी के नाम का ये लोग करते नहीं है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम का उर्स करते नहीं है। हर जगह बस ये सब पेड़ बनने वाले हैं, ठोंडे बड़ी बड़ी हो गई, ये सिर्फ देखते हैं। अरे देखना मुरादाबाद में एक दिन वो आ जाएगा कि मुरादाबाद में जलसों से माइक पकड़ के वो खींच लेगी पब्लिक, जवानों की। जवान होशियार हो चुका है कि सुन्नी भाभी कब से तुमने ये तकलीफ कर रखी है 50 साल से। हो सकता है चिल्लाने लग जाएंगे अवाम देखना, चिल्लाने लग जाएगी मुरादाबाद के जलसे से, कह माइक छीनो से और पैसा वापस लो। जो जलसे में इसने तकलीफ में डलवाया, 50,000 बैंक में डलवाया, वो वापस लो, इससे अकाउंट से निकलवाओ उससे। अरे गलत कह रही कि हमारा पैसा हराम का है, जो तुझे 40,000 में बुला के हम जो है कि तुझे इसलिए बुलाया था कि सुन्नी भाभी सुना, हमने इसलिए बुलाया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत सुनाओ, अल्लाह के रसूल की अजमत बताओ, अल्लाह के रसूल के मौजिज़ात बताओ। ये क्या सुना रहा सुन्नी भाभी, जब देखो जब सुन्नी भाभी, जब देखो जब सुन्नी भाभी। ये मुफ्ती है ही नहीं, ये मदरसे में ना यही किताबें पढ़ा है भेदभाव वाली। ये मुफ्ती होता ना तो ये इतनी ढंग की बात करते हैं, इन्होंने बाबाओं की और बुजुर्गों की किताबें पढ़ी है। वो अलजामतुल सगीरिया में पढ़ा है, रिछा में अलजामतुल सगीरिया वहाँ पढ़ के आया है। वो भी वैसी है, वो भी वही 50,000 रुपये लेने वाला। मेरे पाकबड़ा में मैंने 2 बार तकरीर की, पाकबड़ा में 3 बार तकरीर हुई मेरी पाकबड़ा में। तो वो जो जलसा होता है ना, वो शब बारात में पाकबड़ा में बहुत बड़े तादाद में लोग आते हैं, पूरे पाकबड़ा इकट्ठा होता है शब बारात में 15 शाबान को। तो उन्होंने एक बार इसकी तारीख ली होगी, यही अलजामतुल सगीरिया वाले की, यहाँ हम्माज़ा पढ़ा है जोखनपुर वाले की। तो वो मुझे बताया था, लड़का के साथ 50,000 रुपये मांग रहा था। 50,000 रुपये 100 किलोमीटर दूर के, बताओ। अरे तो 1 लाख भी मांग लेंगे, 50,000 उनकी निगाह में कुछ नहीं है। बरेली से पाकबड़ा 100 किलोमीटर है लगभग, तो वहां से जोखनपुर से मान लो कि 35-40 किलोमीटर और समझ लो, 50,000 रुपये मांग रहा हूँ। क्या मालूम अवाम को क्या हो गया है। ऐसे मुफ्ती तो मुझे लगते नहीं मुफ्ती गए ऐसे कोई मुफ्ती इसमें इतनी तरह की कलर की क्या ड्रेस पहनते हैं क्या? ये होता है वो एक ही कलर की मुफ्ती इसमें डेकोरेशन नहीं करेगा अपने कपड़े में, अपने लिबास में। कुरान में है वो लिबास तक़वा, बेहतरीन लिबास तक़वे वाला है।
ये तो कुरान में ऐसी लिबास जिसमें भलाई है, तकवे वाला लिबास है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया। सही बात। मुफ्ती अगर होता तो सादा लिबास पहनता, सादा पगड़ी बांधता। पगड़ी बांधना तो सुन्नत है, लेकिन उसमें भी ये कलरिंग उसमें भी डिजाइनिंग करने लगे हैं। और पाजामा टखनों से ऊंचे रखना सुन्नत रसूल है। और इनके तो टकने भी ढके रहते हैं, मेन हदीस पे तो अमल करते ही नहीं है। इनकी मस्जिदों में चले जाओ, 100 में से 10 लोग के टकने उठे मिलेंगे, इनके आलिम तक के टकने ढके हुए रहते हैं। वो क्या है, अफ्तारी लोग दावत इस्लामी वालों ने तो ऊंचा पहनना शुरू कर दिया था। वो तो पहले तो देवबंदी को बोलते थे, छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का पजामा। दावत इस्लामी वाले ऊंचा पहनने लगे थे तो उनको ये लोग नीचे समझने लगे, उनको ये जाने क्या शक करने लगे कि ये भी सुन्नी नहीं है। वाले हो सकता है दाइस्लामी वाले कुछ दिन बाद वो भी नीचे पहनने लग जाएंगे, डर के मारे। वो डरते बहुत है बरेली वाले से। हो सकता है कुछ दिन बाद वो भी कह देंगे, ये आपस में बातें कर लेंगे, यार नीचे ही पहनो, नहीं तो अपन कोई वैसे ही सुन्नी नहीं समझ रहे। अगर ऊंचे ही पहने रहे अपन टखनों से, फिर अपन को बिल्कुल बाइकाट कर देंगे। सब काम तो देवबंदी वाला कर रहा है। वो दावत इस्लामी ने सब देवबंद वालों से ही तो सीखा है ना। अभी मौलाना इलियास साहब ने जो बुनियाद रखी थी, वो काबिल आलिम फख्र मिल्लत थे और फख्र अहले सुन्नत। हजरत मौलाना इलियास साहब ने बुनियाद रखी और इतना बड़ा काम किया। उनकी नकल तो कर रहे हैं। हजरत अल्लामा अरशदुल काई साहब ने उनकी हजरत मौलाना इलियास साहब की तो नकल की है। सही बात है। अल्लामा अरशदुल काई साहब ने इसको बनाया था कराची में। हाँ, वो इसको अमीर बना दिया था, लेकिन काम तो सीखा उन्हीं से, हजरत मौलाना इलियास साहब से। बंगले वाली मस्जिद से, दिल्ली से उन्होंने इस काम को शुरू किया था, हजरत मौलाना इलियास साहब नबरल्लाहु मरकदहू ने। अब देखो बिगाड़ तो अब उस जमात में भी आ चुका है ना। तबलीग जमात में भी 2 टुकड़े हो गए हैं, एक शूरा हो गया, एक मरकज हो गया। जी 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 जी, सही बात है। तो वो भी जाने क्या क्या कह रहे हैं। इनके अमीर भी, तबलीग जमात के अमीर भी जाने क्या क्या गुस्ताखियां कर रहे हैं। फतवा आ गया दारुल देवबंद का। तबलीगी जमात में ऐसा है शेख साहब, तो मुजाहिद अहले सुन्नत वापी के हैं मौलाना यूसुफ साहब वापी वाले। वो हक बात कहने में अपनी मिसाल आप है। हजरत मौलाना यूसुफ साहब वापी वाले डंका बजा रहे हक का। उन्होंने तो छटियां खड़ी कर दी एक की कहला के ये क्या है कि तुम दूसरों को तो बेइज्जती ठहराओ, खुद कुछ भी करो, ऐसे कुछ अल्फाजों में बोल रहे हैं। वो मौलाना यूसुफ साहब वापी के बहुत जबरदस्त काबिल आदमी है, बहुत मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद मिल्लत। अच्छा एक बात बताइए मौलाना साहब, हेलो, तबलीगी जमात में जब जमात आती है मस्जिदों में तो इनके आलिमों की तो कोई इज्जत रहती नहीं है। इनके अमीर बहुत बड़े मुफ्ती बनते हैं अपने आप को। उनको जो है कहना चाहिए कि आलिम, हजरत मौलाना यूसुफ साहब जो थे ना, वो यही कहते थे कि मैं चाहता हूँ हर जमात के साथ एक आलिम हो। सही बात है। वो कहते थे, वो ऐसा सुना है कि हर जमात से एक आलिम होना चाहिए। ये जाहिलों ने इसको संभाल लिया, बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने उस दिन फजाइल दरूद पढ़ी थी। हाँ हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन इनकी किताबों में बुखा, उसमें इसमें फजाइल अमाल, फजाइल सदकात, फजाइल हैज और फजाइल सुन्नत बहुत शिर्क और बिदअत है किताबों में। ये कोई किताबें ले लेके चलते हैं खबीस लोग, ये लोग भी। शिर्क बिदअत नहीं करना चाहिए सर, वो तो क्योंकि बड़े आलिम ने लिखी थी, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब हदीस में लिखी है। रिवायतें कमजोर आ गई है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं शिर्क बिदअत है। वो हजरत मौलाना शेखुल हदीस जो थे ना, जिनके शागिर्द पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम थे, मुहद्दिस हजरत मौलाना शेख जौनपुरी, मुफ्ती जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द थे, उन्होंने किताब लिखी। हाँ ये कह सकते हैं रिवायतें कमजोर आदमी है, कुछ कमजोर रिवायतें मान सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, वो किताब कुरान हदीस के मुताबिक से नहीं है, उसमें किस्सा और कहानियां और सपनों की ज्यादा बातें लिखी हैं। अब पढ़ के कुछ बातें मान सकते हैं, कमजोर हो ये मान सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े अकाबीर है, मुफ्ती तारिक मसूद है, मौलाना तारिक जमील है, वो खुद बोलते हैं इस किताब में कुछ। अरे तो तारिक मसूद क्या है, तारिक मसूद जाने क्या क्या कह देता है अल्लाह जाने, वो तो जाने क्या क्या कहता है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। मगर वो शेख साहब कभी कभी हक बात बोल देते हैं। बोले तो बोले, लेकिन वो मेकअप कितना करता है, ये देखो चेहरा सजा के आता है। जितने ही पाकिस्तानी आलिम है आप देखना गौर से, वो मेकअप करते हैं। इतना फिरासतुल मोमिन की अगर आप मिज़दाक बन जाओ तो आपको खुद नजर आएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह के नूर से दिखता है। आप गौर से देखो तारिक मसूद का चेहरा कितना मेकअप किया हुआ है। वो मेकअप का करते हैं, कौन बोला आपसे मेकअप करते हैं? और हबीब अत्तारी भी मेकअप करता है, दाऊद हुसैनी वाला, उसका चेहरा भी देखना बहुत मेकअप करके आता है वो भी। मगर आजकल इमरान अत्तारी अब मेकअप नहीं कर रहा, हबीब अत्तारी कर रहा, जबरदस्त मेकअप करता है। मतलब मेकअप के बारे में नहीं मालूम मुझे। वो अशरफ आसिफ जलाली भी,
मेकअप करना तो गलत है, कोई भी करे। अरे मर्दों को अशरफ आसिफ जलाली ने तो ये तक कह दिया सईदा फातिमा ज़हरा इस्लाम खता पर थी बाग़ सदक के मसले में, उसको जेल जाना पड़ा। अल्लाह ने उसको ऐसी सजा दी कि जेल गया, उसका सगा भाई मर गया छोटा, अच्छा जेल होके आया है। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की शामिल गुस्ताखी करेगा तो कहाँ से बच जाएगा वो? सही बात है। और उसका अकीदा अशरफ आसिफ जलाली का, दाऊद इस्लामी के लोगों का, इलियास काजी का, रफ्तारियों का, कि कभी भी फाजिल बरेलवी से खता नहीं हुई, कभी भी। और ये इनका ये अकीदा है कि सईदा फातिमा ज़हरा इस्लाम से खता हुई, ये इनका अकीदा है। अशरफ आसिफ जलाली के हामी लोग हैं, ये लोग हिमायत करने वाले लोग हैं। ये दावत इस्लामी वाले अशरफ आसिफ जलाली को दिलो जान से मानते हैं। जी हाँ, जी हाँ। उसने ये कहा इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा माजिदा बाग़ फतह के मसले में खता पर थी, और जिस दिन मुझे कह देगा कि हाँ फाजिल बरेलवी भी उस मसले में खता पर थे, जो उन्होंने बताया कब्र में शैतान आता बेकाने, इसमें खता पर थे, एक बार अगर एक खता मान लेगा तो पूरी दुनिया के रज़वी लोग उसको मरदूद करार दे देंगे अशरफ आसिफ जलाली को। और ये दाऊद इस्लामी के अमीर को बिल्कुल नहीं मानेंगे कि तूने एक खता क्यों मानी, एक खता भी मत मान उनके हिसाब से। और वो हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा माजिदा के लिए साफ लफ्जों में कह रहा है कि वो खता पर थी बाग़ फतह के मसले में, तब भी उसको कट्टर सुन्नी मुसलमान मानना है। यानी उल्टी अक्ल, इनकी अक्ल उल्टी हो चुकी है इस वक्त बिल्कुल। अगर आपने कहा मैं इमाम शाफी को मानता हूँ लेकिन उनकी हर बात नहीं मानता, आपने कहा मैं इमाम मालिक को मानता हूँ उनकी हर बात नहीं मानूंगा, आपने कहा मैं इमाम आजम को मानता हूँ उनकी हर बात नहीं मानूंगा, तो ही आपको सुन्नी मुसलमान मानेंगे। जिस दिन आपने कह दिया मैं आला हज़रत को मानता हूँ लेकिन उनकी हर बात नहीं मानूंगा, तो फिर आपको मुसलमान नहीं मानेंगे, आपके लिए नमाज नहीं पड़ेगी। शेख साहब मैं सब इमाम को मानता हूँ, इमाम अबू हनीफा से लेके जितने इमाम आए हैं सबको मानता हूँ। इमाम हनीफा, रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, इमाम चारों इमामों ने कहा है, इमाम आजम ने कहा मेरा कौल कुरान हदीस के मुताबिक रहो तो दीवार पे मार देना। हाँ उनका ये है, ये वाला कौल है, मैंने पढ़ा था, इजाफा पाहुआ हल हदीस मजहबी, मेरी बात अगर अल्लाह के रसूल की हदीस या कुरान से टकराती है तो मेरी बात को दीवार पे मारो। चारों इमाम को। कितने बड़े इमाम थे इमाम आजम अबू हनीफा, ये बहुत बड़ा अली मकाम था उनका। रियल नाम तो नौमान बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, नौमान बिन साबित। जी मैं उनको बहुत अच्छे से तहकीक किया हूँ, ऐसा नहीं शेख साहब। अबू हनीफा मतलब हनीफा उनकी बेटी का नाम है, उनके अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी बेटी से नाम जुड़ा हुआ उनका अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हाँ तो ये है कि इस जमाने में अब गुमराही जितनी फैल गई कि तफसीरें भी सबने अपनी अपनी लिख दी हैं। देवबंद वालों ने अलग, बरेली वालों ने अलग, अहले हदीस अलग, मौदूदियों ने अलग, तफसीमुल कुरान लिख दी मौदूदी साहब ने। अब किसकी तफसीर मैं ये बताता हूँ, 150-200 साल पहले के आलिमों की तफसीर पढ़ो। बेशक सही बात है, पढ़नी चाहिए। नहीं 150-200 साल पहले की, क्योंकि अभी ये सबने पब्लिक को अपने अपने हिसाब से घुमा रखा है। सही बात है। तुम अपने अपने हिसाब से घुमा रहे हो तो पब्लिक किधर जाएगी बेचारी, ये तो चक्कर में पड़ जाएगी। फिर कहेगी या तो फिर घरों में नमाज पढ़ेंगे लोग कुछ दिन बाद देखना, या फिर अपनी अपनी मस्जिद खेतों में बना लेंगे, जुम्मे के दिन खोल देंगे, बाकी कह देंगे कोई इमाम नहीं रहेगा यहाँ पर, अपनी अपनी नमाजें पढ़ो मस्जिद में, जाओ यहाँ पर सिर्फ जुम्मे की नमाज होगी बस, और कोई तकलीफ नहीं होगी। ये भी हो सकता है पाबंदी जगह कोई तकलीफ नहीं होगी, नमाज पढ़ो जाओ। मैं किसी को मौलवी आते हैं, इमाम आते हैं, फिर वो हिसाब तकलीफ करके अपने ही बना लेते हैं अपने फिरके का, यानी किसके। अरे भाई इस्लाम बयान करो, क्यों तुम फिरकों में डाल रहे हो कौम को। मैं आपको बरेली एक मौलाना का नाम बताता हूँ, उस्मान यानी क्या नाम है, वो आदमी हक बात करते हैं, वो उस्मान हैं, बहुत बेहतरीन बयान करते हैं। वो तो हजरत मौलाना नासिर रामपुरी साहब भी हक बात बयान करते हैं, फाजिल अशरफिया मुबारकपुर हैं हजरत मौलाना नासिर रामपुरी साहब। उनको तो बोलते हैं वहाबी हो गए। अरे तो चलो वहाबी हो गया तो क्या हुआ, वहाबी के माने अल्लाह वाला, वहाबी माने अल्लाह वाला, अल्लाह का नाम है वो तो। अब कुरान में है नका अंतल वहाब, बेशक तू वहाब है। सही बात है, मगर जो हक बात करता है उसको वहाबी कह देते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह वाला। अरे जो और फिर हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह तो वैसे भी सुन्नी थे, उनके बेटे ने गड़बड़ किया था, तो बेटे की जगह ये लोग बाप को बदनाम करते हैं, फिर वो अल्लाह का नाम भी है, दो तरह से ये मुजरिम हो जाते हैं। सही बात है। अभी मेरे पास एक फोन आया था, क्या मालूम कहाँ था वो, कहना वो अब्दुल वहाब साहब ने, हाँ वो वहाँ से आया था, वसीम बाबू साहब खलीफा शब्बीर अहमद साहब चिश्ती बाराबंकी के थे, कहने साहब अब्दुल वहाब साहब ने ऐसा किया, मैं वो तो सुन्नी थे, फिर कहना नहीं इब्ने अब्दुल वहाब, मैंने ऐसा कहा ना अब्दुल वहाब के बेटे। अब्दुल वहाब क्यों कहते तुम लोग, जब अब्दुल वहाब साहब सुन्नी थे और ये अल्लाह का नाम है वहाब, तो क्यों वहाबी कहते मुसलमानों को मुखातिब करते हो।
अरे शेख साहब, मुरादाबाद में एक चीज और बोलते हैं खुर्रा, क्या मालूम क्या क्या नाम निकाल के रखे, चोबड़े। खुर्रा है तो क्या हुआ, क्या खुर्रा है तो तेरी खाल खींचेगा कि नहीं? पता नहीं मैंने क्या क्या बोलते हैं भाई, अल्लाह ने सही जवान। मुरादाबाद में आप देखो, कमदेव मुरादाबाद में आधे आधे हो गए दोनों, देवबंदी बरेलवी। माशाअल्लाह, अभी देवबंद वालों की काफी तादाद बढ़ चुकी है। मैं नहीं कहता देवबंदी बनो, मैंने कभी नहीं कहा, कभी कहा हो तो बताओ देवबंदी बनो, न मैंने कभी कहा बरेलवी बनो, न हदीस बनो। जो अल्लाह ने कुरान में कहा वो बनो। अल्लाह ने फरमाया है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, फरमाता है न मरो तुम मगर मुसलमान होकर। माशाअल्लाह, कुरान में तवफ़नी मुस्लिमों वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह तू हमें मौत दे मुसलमान बनाकर और हमारा हशर नेक लोगों के साथ फरमा। कुरान में अल्लाह ने हमारा नाम मोमिन मुस्लिम रखा है, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हदीस में भी मोमिन मुस्लिम का लफ्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जुन्नुल मोमिनून खैरा, मोमिनों के नजदीक अच्छा गुमान रखो। दूसरी हदीस में अल मुस्लिम मन सल्लमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान की शान है कि उसकी जबान से उसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना हो। शिया के बिल मुकाबिल अहले सुन्नत वल जमात कह सकते हैं, यानी सुन्नी कह सकते हैं, वो भी जब कभी बात ऐसी है, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब मैं मिर्जा इंजीनियर को मैं नहीं मानता, वो शैतान खत है, वो गुमराह करता है, वो भी बातें अच्छी भी करता है, बाद में गुमराहियत भी फैलाता है। वो हजरत से बड़े बड़े वलियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है, मिर्जा इंजीनियर है ना। वो एक कामरान शहजाद हुआ है, वो सानिया अबुल अला मौदूदी है, वो भी दिमाग से कुरान को समझना चाह रहा है। दिमाग से कुरान थोड़ी समझा जाएगा। कुरान तो जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु समझा और फिर बताया, उनकी तफसीर मानी जाएगी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की। जो बड़े बड़े वलियों ने तफसीर लिखी है, वो सब वलियों के ऊपर बड़े बड़े आलिमों पे एतराज कर रहा है। वो मुफ्ती कामरान शहजाद है ना, बराबर है। और वो ऐसी बातें करता है कि अब हम गुमराह हो जाए कि ये तफसीर सही है, तो वो कहते तेरे बाप ने तफसीर लिखी है क्या? इसका मतलब है कि इसकी तफसीर मानो, जो ये लिख दो मानो। मेरे सामने आया, मैं कहूँ लिख कुरान की तफसीर लिख दूं, पूरे कुरान की तफसीर लिख के बता तेरे बाप में अगर दम है तो एक एक आयत की है। सही बात है। अरे हमारे आलिम ने तफसीर लिख दी तो उन पर एक्शन ले रहा है, जाने क्या क्या कह रहा है, अल्लाह जाने क्या क्या कहता रहता है वो कामरान शहजाद। सानिया अबुल अला मौदूदी समझते मैं, सानिया अबुल अला मौदूदी है वो। जी। और ये मिर्जा इंजीनियर गुलाम अहमद कादियानी का बिरादर है। हाँ। हमें तो चाहिए शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात को सुन। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो मोतदिल आलिम है, और या फिर जो है आले रसूल हजरत अल्लामा सैयद ताहिर काजी साहब, वो देखो उनकी हर बात तो नहीं मान सकते, लेकिन बातें वो ज्यादातर अच्छी करते हैं। चलो, वो फिरका परस्ती नहीं फैलाते अल्लामा ताहिर काजी साहब, वो सीधी बात है। आपसे बात करके बहुत खुशी होती है मुझे। चलो अब खुशा भी होगा इंशाल्लाह। तो और अल्लाह ताला आपको सेहत आफ्ता रखे और बहुत अच्छा रखे परवरदिगार। इंशाल्लाह खुशी होगी, खुशा भी होगा। अल्लाह ने चाहा तो लोगों के अंदर ऐसा माहौल हो जाएगा कि लोग कहेंगे सीधी तकरीर सुनाओ, देवबंदी बरेलवी अहले मौदूदी किसी का नाम मत लेना तुम। आपके घर वालों को, आपके घर सब बच्चों को सलामती अल्लाह रब्बुल जलसा ऐसा कराओ जिसमें एक देवबंदी आलिम बुलाओ, एक बरेलवी बुलाओ, एक अहले हदीस बुलाओ, एक जमात इस्लामी का बुलाओ, चारों को बिठा दो जलसे में, सब नौजवान इकट्ठे करके कह दो कि कोई किसी के ऊपर टार्चर नहीं करोगे, चारों इस्लाम बयान करो। बेशक कुरान और हदीस से बयान करो जो भी करना है। कह दो साफ साफ कह दो कि अपनी अपनी किताबों से नहीं, पुराने आलिमों ने जो लिखी है 150 साल पहले, उनके हवाले से आप बताएंगे बस। सही बात है। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मौदूदी अपनी अपनी किताबों से बताएंगे तो लोग एतराज करेंगे। एक जलसा आप ऐसा कराओ मुरादाबाद में कि एक आलिम देवबंद का लो, एक बरेली का लो, एक शाही का लो, एक जामिया नईमिया का लो, और एक मौदूदी जमात का लो, एक अहले हदीस का। कहना भाई सीधे सीधे तकरीर करो बस, किसी पे टार्चर नहीं करना, किसी पे इशारेबाजी नहीं करना है। सही बात। जब कौम में इनकलाब आ जाएगा, लोग कहेंगे कि यार ऐसा जलसा हम भी कराएंगे अगले साल, या हम भी अब जलसा ऐसे कराएंगे कि एक देवबंदी बुलाएंगे, एक बरेली बुलाएंगे। अगर ऐसा होने लगे ना तो माशाअल्लाह फिरका वारियत ही खत्म हो जाएगी और सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। नहीं कहना ये बात ही मत करो कि ये इसने वो लिखा वो लिखा, सीधी सी बात करो, इस्लाम बयान करो, अल्लाह के रसूल की सीरत बयान करो, अजमत बयान करो, मौजूदात रसूल बयान करो। देखो ये मुफ्ती कामरान शहजाद है ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात को भी नहीं मानता है, जहाँ तक मेरा अकीदा ख्याल है नहीं मानता, ये कभी बयान नहीं करता। ये भी उसी रंग का है। ये मुफ्ती मिर्जा इंजीनियर और मुफ्ती कामरान शहजाद दोनों अल्लाह के रसूल के मौजूदात बयान नहीं करते हैं।
मैंने तो उनका बयान सुना नहीं है शेख साहब। आपकी दोनों उंगलियां मुबारक से पानी निकला, अल्लाह के रसूल की दोनों उंगलियां मुबारक से 1500 सहाबा किराम ने पिया। उस मौजूदे को नहीं मानते लोग। हाँ हैं? हाँ सही बात है। नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहाए, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम है। बराबर है। जो मौजूदात दुनिया में मशहूर हैं, किताबों में बड़े बड़े आलिमों ने लिखे हैं, वो तो मानना पड़ेगा ना। शक्कुल कमर का मौजूदा है, बराबर है। शक्कुल कमर के मौजूदे पे भी ये लोग जने क्या एतराज करते हैं लोग। सही बात है। आप तो 150 या 200 साल पहले के आलिमों की किताबें पढ़ो, और जो मीडियम आलिम है, जैसे रामपुर कुतुब रामपुर अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना काजी खुशनूर साहब, उनसे जाके आप मुलाकात करो। वो मीडियम है, वो न देवबंदी न बरेलवी, वो सुन्नी है, बस ये बातें नहीं करते जैसे आप कर रहे हो ना बातें, ऐसी बातें वो करेंगे। काजी खुशनूर साहब रामपुर के, वो जो हक बात करते हैं ना, अल्लाह उनको और भी हिदायत देता है। और मुफ्ती आजम रामपुर अभी मौजूद है, मुफ्ती महबूब साहब, वो भी सीधे सीधे बात करने वाले हैं। वो औलिया अल्लाह को ही मानते हैं, और जितने भी वली हैं सबको मानते हैं। वो भी मैं कह रहा हूँ, जो सहाबा को मानता है, अहले बैत को मानता है, औलिया कुरान को मानता है, तो सुन्नी तो है वो। और कैसा सुननी चाहिए इन लोगों को? वही नाते पढ़ने वाला चाहिए, और आला हज़रत की कुफ्र और शिर्क वाली बात करने वाला चाहिए, वो सुननी चाहिए उनको। और बुराई करने वाला है, फिरकावारियत करने वाला सुननी चाहिए, वो होते हैं सुन्नी। इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बंटवाया। अरे वो तो बहुत बड़ा शैतान है, वो तो बाल तो छोड़ो, कुछ दिनों में अपने नाखून बंटवाएगा। जाने क्या क्या करवा रहा है, अपना मीलाद नामा पढ़वा रहा है, और उसका वुदू का पानी लोग इस तरह से लेंगे जैसे कि हदीस में है ना, सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुदू फरमाते थे तो सहाबा किराम अपने हाथों को लेके नीचे खड़े हो जाते थे, अपने मुंह के ऊपर वो पानी मलते थे। यही हाल इलियास काजी का भी हो रहा है। शायद हो लगा होगा, या गालिबन मुझे कुछ ऐसी खबर थी कि कोई ने ऐसा कहा है, इस तरह का मामला। यानी ये अल्लाह के रसूल की बराबरी हो रही है कि नहीं हो रही? अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाना। फिर इमरान अत्तारी कह रहा है कि मुंह कहते हैं फारसी में बाल को, और यानी बचाव करने के लिए, यानी कंका के बहाने बना रहा है। फिर काय को रुजू करने आया जब बचाव करने के लिए बहाने बना रहा है? सीधा सीधा उसने अपने इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, और सीधा सीधा मीलाद नामा पढ़वाया। और उसने कहा टीवी के बारे में कि टीवी को मारो शैतान को। बाद में अब इसके आदमी ने कहा कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम नहीं पहुंचाया। बताओ, टीवी से अब इनको आवाज भी आने लगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुफ्ती अख्तर रखा साहब अजहरी मियां ने भी ये बात कही है, यूट्यूब में मौजूद है। मुफ्ती अख्तर साहब भी यही तो बात कह रहे हैं। और बताओ, ये लोग अजहरी मियां को भी नहीं मान रहे, उनके मानने वाले, और उनके मानने वाले भी इसको अमीर अहले सुन्नत कह रहा है। भाई ये अमीर अहले सुन्नत क्यों कह रहा हो यार? ना आलिम है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है, इसको आप अमीर अहले सुन्नत कह के मुजरिम क्यों बन रहा हो अल्लाह की बारगाह में? दोगे कि तुम तमाम दुनिया के आलिमों का इसको सरदार मान रहा हो। अमीर अहले सुन्नत का मतलब है कि तमाम दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का सरदार। इसको अमीर माना किसने? देखो, अमीर अहले सुन्नत तो अरशद मदनी साहब को भी नहीं कहा जाता, अमीर अहले सुन्नत तो बरेली के अजहरी में साहब को भी नहीं कहा जाता, मुफ्ती आजम हिंद को भी नहीं कहा जाता, भाई किसी को भी नहीं कहा गया। आपने सुना कभी अमीर अहले सुन्नत देवबंद को कहते, न बरेली वाले अपने आलिमों को कहते, न अहले हदीस कहते? नहीं। इसको पूरी दुनिया के आलिमों का मतलब अहले सुन्नत पूरी दुनिया में। जामे अजहर मिस्र के आलिम, वहां पर देवबंदी भी जाता है, बरेलवी भी जाता है, अहले हदीस भी जाता है। हम तो जामे अजहर मिस्र को मानते हैं कि वहां से जो फतवा आ जाएगा हम भी मान लेंगे, मंगवा ले वहां से फतवा। वो हुशामुल हरमैन को मानते हैं कि नहीं, वो इमाम काबा को क्या मानते हैं, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हैं, कब्र पे अजान देने को क्या मानते हैं, कब्र में शैतान आता है कि नहीं, सिवायत को क्या मानते हैं, जुमे की अजान अंदर से बाहर कराने पर वो क्या मानते हैं। वहां तो जुमे की अजान अंदर होती है, वो अंगूठा भी नहीं चूमते अजान में। जामे अजहर मिस्र के उलमा अंगूठा नहीं चूमते हैं। सही बात है। तो वहाँ पढ़ने क्यों जाते हैं जब ये मान रहे हैं कि बड़े बड़े आलिम, तो पढ़ने क्यों जाते हैं वहाँ पर? अरे ये बहुत बड़े फितना है, इनके कुछ बच्चे देवबंदी मदरसे में ही पढ़ रहे हैं, मैंने खुद देखा है। बड़े बड़े इनके आलिम पढ़ के आए, शेर बिहार पढ़ के आए, मुफ्ती असलम साहब लुड़की में पढ़े हैं देवबंद वालों में। मुफ्ती असलम साहब इंतकाल हो गया, बड़े काबिल आलिम थे, वो बिहार में, वो लुड़की में पढ़े थे देवबंद वालों में। और ये और इनके आलिम तो नजवा ज्यादा पढ़े, नजवा में पढ़ने वालों में हजरत मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही साहब का इंतकाल हो गया, नजवा में पढ़े थे। हजरत मौलाना मुफक्किर इस्लाम कमरुज़्ज़मा खान साहब आजमी नजवा में पढ़े हैं। और हजरत मौलाना अली अहमद सिवानी साहब जो नाजिम थे, उर्से आलात के नाजिम थे, वो उन्होंने मुझे खुद बताया, मैंने उन्हें जलसे में बुलाया था गुजरात में, वो कह रहे थे मैं खुद नजवा में पढ़ा हूँ।
तो नदवा की तुमने रोटियां खाई, नदवा की तुमने बोटियां खाई, नदवा की तुमने चाय पी, नदवा के आलिम को तुमने सलाम किया, वहां पर मुजालिसत की, वहाँ मुआकिलत की, मुशारकत की, मुआनिकत की, मुसाफियत किया, और यहाँ बाहर आके तुम हदीस पढ़ोगे इनके साथ खाओ मत, इनके साथ पियो मत, इनके साथ बैठो मत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है? नहीं, जलसे में आगे हदीस पढ़ते हैं कि ला तो आकिलूं ला तो जालिसूं ला तो शारिबूं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इनके साथ खाओ मत, इनके साथ पियो मत, इनके साथ बैठो मत। और नदवे में और जामे अदर मिस्र में मुजालिसत, मुआकिलत, मुशारबत, मुआनिकत, मुसाफियत सब साबित हो जाती है इनकी। सही बात है। और अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी हनीफ कुरैशी साहब ने इतना बड़ा काम किया है इस दौर में, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाने की कोशिश की उन्होंने। जी जी जी। हजरत मौलाना कारी सुल्तानुल मुकर्ररीन है इस जमाने के अंदर, और खतीब एशिया है हनीफ कुरैशी साहब, मुनाज़िर आजम भी हैं अपने वक्त के, और ये समझ लो कुतुब आलम बन सकते हैं वो आगे चल के। बहुत नूरानी चेहरा है उनकी, हमारा हर बात तो नहीं मानी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जगाया है कौम को, बहुत बेहतरीन काम किया कारी। उनको ये मवेशी कह रहे हैं, मवेशी। अब कुरैशियों को गुस्सा आ गया तो क्या कहेंगे वो, मुरादाबाद के कुरैशी और रामपुर के कुरैशी और पूरी दुनिया में कुरैशी है हिंदुस्तान में, कि यार हमारी बिरादरी वालों को मवेशी कह रहे हैं, अफ्तारी लोग दावत इस्लामी वाले मवेशी कहने लगे उसको, हनीफ कुरैशी को लोग। अब मवेशी तो जानवर को कहते हैं ना, कुरैशी की आप बुराई यानी इतनी तौहीन करना, ये तो अल्लाह ने जाते बनाई है कुरान में। शुअब व कबाइल तारफू, अल्लाह फरमाता है शुअब में कबाइल में तुमको इसी तकसीम किया है तारफू, ताकि तुम एक दूसरे का तारुफ कराओ। आगे फरमाया इन्न अक्रमकुम इंदल अत्काकुम, बेशक मेरे नजदीक इज्जत वाला वही